सबकी सबसे लड़ाई। हमास बना रखा था, हमास। हाँ जी, स्टार्ट करें। हम्म। ऑलराइट। एस्केप वेलोसिटी। Okay, so escape velocity basically is the minimum velocity which is required so that the body escapes the field of the earth. फील्ड ही ना हो उसके ऊपर, फ्री हो जाए। ठीक है। वर्टिकली अपवर्ड फेंकना होता है बॉडी को। मतलब जैसे रॉकेट्स जाते हैं। जी। Escape velocity is the minimum velocity. वो एस्केप द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। Yes, you can say that. So you need to do some work to overcome it and be able to overcome. डेली आई केयर, मेरा थेरेपी चल रही है मेरी यार, आईज की। वो कैसे चल रही है? Escape velocity is the minimum velocity with which a body must be projected vertically upwards in order that it may just escape the gravitational field of the earth. Very important concept for numericals and exam. ठीक है। आप ले लो ये अर्थ का आपका, this is your earth and you project a body from earth's surface. It goes up, 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 up. Okay, and at a certain point the field is non-existent. It experiences nothing. कोई मिनिमम हाइट होती है कि लाइक किसी ऑब्जेक्ट हाँ, को? राइट। सो पहले तो एक मिनिमम वेलोसिटी होती है और उसके करस्पॉन्डिंगली यू कैन वर्क ऑन द हाइट। तो ये आपने मान लो पी पॉइंट पे पहुंच गए आप। हम्म। सो यू रीच अ पॉइंट पी। So this is the vertically upward direction. So you reach a point P and then you move slightly forward. आप थोड़ा सा और आगे यहाँ तक पहुंचे। ये पॉइंट आपका Q हो गया। यहाँ पे जो आपको फोर्स लग रही है एट अ डिस्टेंस x, दैट इज F is equal to G mm by x square from the center है। So I will just extend this arrow downward. Okay, so this is the downward arrow and the work done in moving it by further distance of dx dw will be equal to g mm by x square into dx. So the total work you had to do to make it move from this point till infinity, because at infinity the potential, sorry, the field is absent. So the total work done will be starting from the center surface where it is there, sorry, here, r से लेके infinity, g m by x square dx is equal to minus g mm by x
r to infinity is equal to नहीं, minus g x mm. स्क्वायर नहीं था ये? हाँ, तो इंटीग्रेट होके x raised to अच्छा, power minus 2 ठीक plus 1 ठीक। infinity plus g mm by r is equal to g mm by r. So this is the amount of work you have to do to ensure that the body leaves the reaches infinity. So it reaches infinity. This is the amount of you from surface to the. So let the velocity with which it was shot or sent is, let it be v, escape. So here it has at r, if you notice, it has half m v escape square, and then the amount of work which is done on it is gmm by r when it becomes free. So the complete escape velocity kinetic energy which is imparted at the uh, surface gets converted into the work done, because there has to be a source of work done. So this is the source of work which was done. Fuel jalta hai basically. बहुत ध्यान से देखे तो source of work done. So the fuel burnt and velocity came in, and so this work got converted into g mm by r. So m goes away. So v escape square is equal to g m by r into 2 g m by r, and v escape is equal to under root of 2 g m by r. So that's your escape velocity. And uh, you can also convert it, because mg, this is one formula. If you have to find escape velocity on a planet, you should know the mass of that planet, you should know the radius of that planet, and you can decide. अगर किसी का मास डबल है तो द एस्केप वेलोसिटी विल बी रूट 2 टाइम्स. अगर उसका रेडियस आधा है फिर भी वही होगा. तो यू कैन डिवाइड वी एस्केप अर्थ and then we escape maybe Jupiter. Say, okay, it is 2g 11 times Earth and maybe 6 times the radius. So divide these two, you can find the escape velocity of Jupiter, how many times it is as compared to the Earth's escape velocity. The second is mg is equal to g mm by r square. So mm is gone. So g is equal to g m by r square. So gm by r can also be written as gr is equal to gm by r. So whatever is gm by r converted into v escape is equal to under root gr. ठीक है। A short form of the formula. Sorry, 2 is missing, I think. We have not written 2. 2 भी आ जाएगा ये वाला. 2. So because gm by r है ये. So under root हेलो। 2 gr. So you can also find the escape velocity in terms of acceleration due to gravity, or you can find it universal gravitational constant. So this is one formula. This is a second formula of the same. ठीक है। And sometimes if density etc. is given, just be careful that mass is equal to density into volume. So mass is equal to density into 4 by 3 pi r cube. Okay. Sometimes this is also used to find the value. There's a relationship between mass and radius and density of. So if the density of the two planets differs, but radius and mass is identical, तो radius same है but mass निकल आएगा उससे comparison में. So there are two planets. So instead of giving you question in mass and radius, they will give the question in density. You can see there is a mass and radius density. So here also mass and radius density can come. Right? So mass upon radius density is actually rho 4 by 3 r square. It finally depends on r square. We'll see how the density questions are addressed. So moon pe, earth pe jo, what you have to memorize for earth is that for earth, the escape velocity, if you send something at this speed,
11.2 kilometer per second it escapes the Earth. मून पे it is For like all ob 2.3. हाँ जी. for all objects, Yeah. 1.2 kilometer per Yeah, second. because देखो formula में there is no mass of the object which is making appearance. It ठीक is है. independent, right? There is no mass mentioned here. हम्म, Completely नहीं, depend on planetary terms. हाँ Mass मुझे of बस the पूछा था planet, all radius. objects के लिए ना. Yes. Jupiter, उस 11 टाइम्स है अंडर रूट 60. 60 60. kilometer per second. अच्छा. Sun पे if you want something to escape, अरे सर 618 kilometers per second. वो तो इम्पॉसिबल चीज है. Neutron star से if you want to escape something, then you ये need 2 lakh kilometer per second. सर ये इम्पॉसिबल चीज है, न्यूट्रॉन स्टार और सन. Mercury, मरकरी में तो कम होगी. 4.28 kilometer per second. Earth is also pretty reasonable, decent है, 11.2 kilometers per second. बट सर सबसे ज्यादा तो न्यूट्रॉन स्टार की, ये सबसे डेंसेस्ट वो होता है ना चीजें. हाँ. सर ब्लैक होल की तो फिर जीरो नहीं होगी. कितनी होगी क्या फिर? चीज जीरो होगी? मतलब एस्केप वेलोसिटी तो फिर बहुत ज्यादा होगी ब्लैक होल की तो. क्या बात कर रहे हो तुम? मतलब ये जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन स्टार है, स्टार. इट्स अ ब्लैक होल. हाँ. एक तरह से वही है, और क्या है ये? ब्लैक होल होता है. Absorbs everything, attracts everything. Neutron star हम्म, finally gets converted to a black hole अच्छा. when it. Let me show you. Though complicated, but अब ये it comes in the IB board में आता है ये. So it's part of the IB board syllabus. इमेज पेस्ट कर रहे. हाँ, just neutron star does convert into. But anyway, we are not focusing on black hole and anything, so we don't have to worry about black hole. न्यूट्रॉन. Yes. ये एम डॉट क्या है सर्कल के अंदर डॉट? पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता. स्टार का है कोई. यूनिट होगी ये मास की. हाँ. अगर इससे ज्यादा हो तो ये एक ब्लैक होल बन जाता है. ओके. यो. मतलब बेसिकली न्यूट्रॉन स्टार नहीं, एक जाइंट स्टार बनता है फिर एक, हाँ जी. इसके अकॉर्डिंग तो. ठीक है. Okay. So now we know the formulas also. Also, you can use the density formula and put mass is equal to density into volume. So all the answer will come in radius. ठीक है, आ जाएगा तो आ जाएगा. So some very important questions come in this. जो खासे मतलब
सर हाँ जी। ठीक है, अब आगे क्या करना है? हाँ, आपने क्या एसएल रोड़ा खोली हुई है क्या? क्वेश्चन नंबर 1। डन। बढ़िया। एग्जैक्ट आंसर सही है ना? वेट, लेट मी क्रॉस चेक। 11.2 आना चाहिए। 11.2 ठीक है। किलोमीटर्स होगा। हाँ ठीक है, बढ़िया। बढ़िया है। वो वैसा नहीं होता, पेट वाला क्लियर नहीं होता, वो खून वाला होता है, बच्चे का खून अगर बाप पे होता है ना। किस बच्चे का खून बाप पे है? I'm so sorry, just please ignore this. खून की बातें हो रही हैं भैया, पुलिस सुन लेगी। बैकग्राउंड कैंसलेशन नहीं है।
प्लीज सर इग्नोर करो। ठीक है, मैं सुन नहीं रहा यार। इंटरेस्टिंग टॉक। म्यूट ही कर लेता हूँ आपने। नहीं नहीं, ठीक है यार, इट्स फाइन। ये तो बोरिंग हो जाएगा बड़ा, चलने दो यार। सम टाइप ऑफ गॉसिप इज वेलकम। खासकर खून की हो तो बहुत ही अच्छी है। नहीं। बच्चे का बाप खून पे। बच्चे के ऊपर बच्चे नहीं, बाप का नहीं, अरे बच्चे के नहीं, खून। ऐसी बात करते हैं कुछ। छोटी मोटी तो बात ही नहीं है भाई। सीधा ही खून खराबा। वायलेंट है मेरे थोड़े परिवार वाले। कॉलोनी के बच्चे तो भागते होंगे। को क्या? कॉलोनी के बच्चे। अरे नहीं कुछ भी। कोई असर नहीं। हो गया। फॉर्मूला फिटिंग है। मैं सारी कैलकुलेशन कर करके देख रहा हूँ बस। रेडियस दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है यार। हाउ डिड यू कैलकुलेट 9.8? ये तो मून है। हाँ, मून पे 9.8 क्यों होगी? यू कैलकुलेटेड ऑन अर्थ फ्रेंड। गलत है। यू हैव नॉट इवन यूज द मास ऑफ द मून। दूसरा फॉर्मूला हाँ यूज करना चाहिए था, 2 GM/कैपिटल R। सर 6.7 इंटू 10⁻⁻16 है ना, -11 था। हम्म। जी। अंडर रूट। नहीं, अंडर रूट नहीं होता ना, इसमें नहीं होता है, अंडर रूट भी होगा। अंडरवुड में बाद में कैलकुलेट कर लूंगा अभी। ओके। ये अंदर आके बाय 1 पॉइंट।
तो जी 1.62 आ जाएगा। हाँ जी, 1.62 is the G on moon. but why did you go this long a route here? ये निकल तो गया 1.62 आंसर। हम्म, ये √2 GM/r वी एस्केप का ही तो फॉर्मूला है, अभी जो हमने डिराइव करा था। ठीक है। ये एक्सेलरेशन कहाँ से आ गई है? नहीं, 1 मिनट में क्या कर रहा हूँ। भाई जी का फॉर्मूला इज GM/r²। वी एस्केप का फॉर्मूला इज √GM/r। ठीक है। If you have already calculated this, then why are you saying कि G निकाल लिया उससे? ये नहीं, फॉर्मूला वी एस्केप का है, उसी फॉर्मूले को चेंज करा हुआ है, और टू भी नहीं लिखा, 2 लिखा है। हम्म, ये फॉर्मूला है वी एस्केप का, तो कर तो दिया, फिर उसको जी क्यों बना दिया? नहीं बस ठीक है। तो अंडर रूट कैलकुलेट कर रहा था इसका। 2300 मीटर पर सेकेंड। 2300। ओके, लेट्स कंपेयर। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। गलत है? गलत नहीं है नहीं, ना? ठीक है, एक सेकेंड। 23 क्वेश्चन, ये मीटर पर सेकेंड में आया है। हम्म। आंसर इज 2375 2375। मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कुछ तो। काफी बड़ा गैप है। हाँ, 2375। 2300, इसमें काफी बड़ा गैप है। यू यूज कैलकुलेटर? हाँ। तो भी नहीं आया। नहीं, तो अप्रोक्सीमेट ही आ रहा था। 1 मिनट। 7.36 डिवाइडेड बाय आर कितना लिया? 1.76 मल्टीप्लाई बाय, नहीं नहीं, वो सब काट दिया था मैंने बाद में। काट दिया। ये वैल्यूज तो ऊपर सारी लिखा सही था। डाली हैं, ऑल वैल्यूज आर करेक्ट। फिर एक मिनट, 12 चेक करता हूँ।
667 into 736 into 2. 176. 2375 2375 meters per second ना. 2 multiplied by 667 शायद उन्होंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 3 डिजिट तक ले ली हो तभी से multiplied by 736 is equal to divided by 176. मैं एक मिनट में ग्रेविटेशन कांस्टेंट में 10 की पावर गड़बड़ लग रही. हाँ 10 की पावर थोड़ी गड़बड़ हुई है. हो गया. 11 ही ली होगी, -11. हाँ ये 2 कैसे बनी? हम्म यार इतना रुला दिया मतलब एक छोटे से क्वेश्चन में. फॉर्मूला फिटिंग में कैलकुलेशन एरर. 20 मिनट कैलकुलेशन चल रही है. ये हो गया. हालत है. 75. 2361 ठीक है, अप्रोक्सीमेटली. meters per second. कैलकुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम है यार, साफ साफ दिख रहा है. एंड ये एंटिसिपेट भी कर सकते हो कि इवन इफ यू टॉट एवरीथिंग यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर फुल मार्क्स. पूरा पढ़ा दो, सब सिखा दो, उसके बाद भी नहीं आएंगे. ये भी पक्का है. कोई छठी सातवीं को टीचर ढूंढो कैलकुलेशन के लिए, जो छठी सातवीं में सिखाते हैं ऐड और मल्टीप्लाई करना. बोर्ड मास, दैट इज वेयर योर कैलकुलेशंस इज. एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो और सपोजिटली और कैलकुलेशन का हाल देखो. ऑल रिफ्लेक्शन ऑफ लेजीनेस. नेक्स्ट. Estimafc. काफी बड़ा है जुपिटर तो. एक्सट्रीमली बिग. ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा होती होगी इसकी फिर.
हेलो। हाँ जी। हाँ, हो जाएगा। बड़ा मत करो उसको। अरे तुम्हारे पास जगह है तो सही, नीचे लिखने की इतनी सारी। पढ़ा नहीं जा रहा। जूम कर लो। जूम्ड है, फुल जूम्ड है। Into 318 into mass of the earth. और गैस आ गई हमारे यहाँ पे। क्या? पाइप वाली गैस। अच्छा, बढ़िया। गांव वाले मकान में। तो सर, जुपिटर की जो एस्केप वेलोसिटी है, हम्म। it would be 5.32 times of Earth's escape velocity. हाउ मेनी टाइम्स? 5.32 times approximate.
हाँ मतलब कितनी है, क्वेश्चन तो है फाइंड द वैल्यू, रेशियो थोड़ा ना निकालनी है। फाइंड द एस्केप वेलोसिटी ऑफ जुपिटर 59.584, है। 59.584 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन का मतलब ही नहीं पता। The क्या, moon would depart forever if its speeds were increased by 42%. so it is rotating around the earth, it is revolving around the earth, right, at some speed. Mhm. So if you increase the speed by 42%, maybe it acquires a speed which is escape velocity from, it will escape from earth's Sphere of हाँ, gravitational sphere. यस यस। तो वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप तो अंडर रूट 2 g r ही होती है। हम्म, तो करंट वेलोसिटी निकाल लो उसकी सर्कुलर ऑर्बिट में, वो टेंजेंशियल तो होती है। तो उस टेंजेंट वाली जगह पे अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी आपने टेंजेंशियली फर्दर टू अ लेवल ऑफ अंडर रूट 2 g r, तो वो एस्केप कर जाएगा ऑर्बिट से। तो देखो वो जो उसकी सर्कुलर वेलोसिटी है हम्म, और जो एस्केप वेलोसिटी अंडर रूट 2 g r है, उसमें कितने परसेंटेज का गैप है। अगर वो 42। वाकई में 42% का गैप है तो इट विल एस्केप। ठीक है। तो इट इज मून की सर्कुलर वेलोसिटी को हम क्या माने? mv² / r इज इक्वल टू gmm/r²। यहाँ पे अर्थ है, अर्थ के अराउंड घूम रहा है मून, ये मून है। So it is revolving around like this under the influence of a centripetal force. The source of the centripetal force is the gravitational field. mv स्क्वायर अपॉन nv स्क्वायर r अपॉन gmm और था। तो mv Is स्क्वायर equal to gmm/r²। सबसे चैप्टर ही यहीं से स्टार्ट हुआ था। नहीं नहीं, मैं बस r², न्यूटन्स फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। m कट गया दोनों साइड से, v आ गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई। v आ जाएगा अंडर रूट 2 g m/r, 2 तो है ही नहीं, खैर अंडर रूट gm/r। ठीक है, आ गया। अंडर रूट और इसकी जी स्केप वेलोसिटी क्या है देखो। 2 g r। अंडर रूट 2 gm/r। gm/r प्लस प्लस 42% इंक्रीज है हो रहा है ना। स्केप वेलोसिटी कहाँ लिखी है। ये उसके बराबर लिखूंगा ना ये फिर। लिखोगे थोड़ा ना यार, लाना है उसके बराबर। हाँ तो मतलब वही। LHS इज इक्वल टू RHS। हम्म इज इक्वल टू 2 gm बाय आर।
GM/R कॉमन आ जाएगा। Just for your knowledge and so that you can sense it also, the velocity is given by under root 2gr. If you have change in gravity because of height, gravity changes, remember that. ठीक है। तो ये चेंज कर देना, जी डैश लगा देना यहाँ पे। कभी दे बोल दें कि द रॉकेट इज लॉन्च्ड एट ट्वाइस द हाइट ऑफ हिमालय, मतलब 16 किलोमीटर पे छोड़ा है, या इट इज लॉन्च फ्रॉम 200 kilometers above the surface of the earth. Then calculate at height h what is the new g. That's all. So it's an indirect way of telling you कि g change कर दो. ठीक है। 2 by 32, sorry, 2 by 32, 1 by 32. ये तो वैसे हमें कैलकुलेट करना है। सर ये 1.42 है, जिसका मतलब ये हो जाएगा, वह क्या कहते हैं, √2, √2। सर हो गया प्रूफ। हाँ जी, प्रूफ्ड। ठीक है। And when you also apply this logic that we escape, I think we'll go to the next page. ये काम नहीं कर रहा यार ये. This page is also full. The other is if you write v to be equal to under root 2gr. So this is generally used when the launch is from the surface of the planet. But if the launch is at a height, of course, you will use 2gh, and also the height, the new radius has to be mentioned. So your radius or the place at which you are launching also get included in the equation. So generally you will launch from here. On the surface, your distance from the center is r. But if you're here, then it is r plus h. ठीक।
सर GH होगा। वो G इंटू 1 माइनस 2h/r 2 इंटू 1600 बाय 6400। राइट। तो ये आ जाएगा 1/2। हम्म, 6400। तो 280 मीटर पर सेकंड। तो 80। सही है। what is the answer? क्या निकला आंसर? तो 280। 280 गलत है। मतलब escape velocity is 10.02। 280 कैसे हो सकती है escape velocity? अच्छा मीटर्स में 10 निकाली। ओके सो यू हैव टेकन g/2, ये g/2 डाल दिया। G डाल दिया ना मैंने, वो 2 से कट गया। g/2 निकला है ना? हाँ। g/2 डाला ना? हम्म, समझ नहीं आया। अंडर रूट का है। अच्छा यहाँ ये सिर्फ g है। ओके नहीं तो अंडर सिर्फ रूट G। g, 2 का अंडर तो ये रूट 2g। 2GH है ना, तो 2G/2 को फिर मैंने G लिख लिया था। ओके 2g/2 r प्लस h कितना आया? 8000। अच्छा ये तो 8000 किलोमीटर है, सॉरी। हम्म
ये तुम्हारा बड़ा बुरा हाल है कैलकुलेशन में भाई. अरे मैंने सिर्फ I'm मिस्टेक की. surprised to see 11th standard student worse off than a third class student. अरे नहीं वो मल्टीप्लाई थोड़ा. नहीं करने आता, जीरो की गलतियां, है ना, हॉरिबल. No wonder you are not able to score full marks. Seven sevens are, four fours are 16. 10 raised to power square into 10 into root 10. आंसर आया 2800 root 10 meter per second. ये आना चाहिए. ये तो कोई आंसर नहीं है. रूट 10 की वैल्यू नहीं पता मेरे को क्या होती है. 3.61. 3.6 होता है, 3.1 होता है. वाकई में I think you should join some sixth standard to उस लेवल का कुछ. 8.848 किलोमीटर पर सेकंड. गलत है. गलत कैसे है? अब तो सब सही है. अरे कोई कैलकुलेट. जी की क्या वैल्यू डाली थी? 9.8. जी की वैल्यू कैसे आई 9.8? हाँ. जी की वैल्यू निकाली कैसे G/2? तो g/2 मतलब वो क्या कहते हैं, g इंटू 1 - 2 इंटू. G is equal to G 1 - 2h/r. हाँ. हाँ, फिर क्या करा? G 1 माइनस 1/2. 3200. पहुंच सकते हो 1/2 तो होता है. g/2 आ गया. G/2 और एक 2 था, चलो वो चला गया. हम्म. और आ गया R+H. हम्म. 9.8 इंटू 8. 8,000 किलोमीटर से तो उसको ने मीटर्स में कर दिया. 4 इंटू 7. रूट ऑफ 10 इज 8 × 5 3.16. 6. 3.16 multiply by 3.16 multiply by 2800. हाँ. तो ये 8.8 आ गया. एक 2 इंटू 9 पॉइंट. ओके, डोंट टेक अप्रोक्सीमेशन. ये अप्रोक्सीमेशन तो तब वैलिड होती है ना विच यू टुक व्हेन h इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r. बट 1600 इज नॉट वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 6400. तो ये लेना मना है. Can't take this. This is not allowed because h/r is pretty large. 1/4 है यार उसका, छोटा का है. ये तो तब लेनी होती है जब 20 40 50 किलोमीटर होता है. ठीक है. So g is equal to फिर आ जाएगी वैल्यू फिर. gm/r² and gh will be equal to gm r+h². ये लेना है gh को, g/2 नहीं लेना.
ठीक लेना है 1/r+h²। मतलब तो काफी कम आ जाएगी वैल्यू। क्यों कम क्यों आएगी? आप इंटू डिवाइड भी तो कर रहे हो उसको r+h² से। हाँ, ऊपर भी तो एक r+h है, कट जाएगा जिससे। इससे कट जाएगा ना। हम्म। ये सॉरी, ये स्क्वायर जोड़ना होता है। जी स्क्वायर की जो वैल्यू निकलती है, the value of g which you get, mg is equal to g m/r². So g is equal to m/r², and g plus g at h is equal to m/r+h²। ओके। अगर इसको ब्रैकेट में डालूंगा मैं, so this will become m/r+h² into r+h। 2 भी हो गया यहाँ पे, तो 2m/r+h। ऊपर m भी तो है, ठीक है। कम कैसे हो जाएगी? m है ही नहीं अभी तो। ठीक है, नेक्स्ट। समझ आ गया? हाँ जी। Going to the next page, I think here this is done। मैं और लिखा नहीं जा रहा। दोनों प्लैनेट्स को परफेक्ट स्फीयर मान सकते हैं। मान सकते हैं।
I will just tell your mom क्या? about your calculations. You अरे need नहीं help. नहीं, ना ना, मैं ठीक कर लूंगा उसको लिख लिख नहीं करोगे यार, अभी तो पूरा 11वीं खत्म हो गई लेकिन तुमने सुधार नहीं करा उसके अंदर. के। You will वो ruin your career because of this. सारे नंबर कट जाएंगे तुम्हारे बोर्ड में भी. तुम्हारा अरे कोई नहीं क्वेश्चन नहीं, ठीक नहीं हो सकता भाई. नहीं नहीं, मैं बेटर है यू अभी, टेक ट्यूशन फॉर दिस. नहीं 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 नहीं, मैं कर तुम्हारे लूंगा ठीक मोहल्ले है। में टीचर नहीं है कोई 6ठी 7वीं 8वीं की? अरे नहीं नहीं, हो जाएगा, मैं कर लूंगा। लिख, तो कब कैलकुलेट कैसे लंबे, करोगे भाई? तो लंबे लंबे कैलकुलेशन करके हाँ, क्वेश्चन को। मैं दूंगा तुम्हें, फिर कैलकुलेशन करके दिखा देना कल. ठीक है डिटेल ही दूंगा तुम्हें मैं. ठीक है और ठीक आई एम है। सरप्राइज्ड मैं. 11th स्टैंडर्ड के बच्चे को मल्टीप्लाई नहीं करने आता अरे ठीक वो से. मैं मिस्टेक्स कर रहा था, मैं थोड़ी, नहीं करूंगा। अब तक आ जाती है कैलकुलेशन. ओके। सर प्रूफ्ड। चेक कर लो। लेट मास गिवन डेंसिटी सेम एवरेज और रिलेशनशिप निकाल ली उसके लिए. ठीक है, गुड वर्क. लेट मी ओपन योर असाइनमेंट एंड सी कोई इसमें था क्वेश्चन.
had sent me an assignment. सर एक आप मुझे अभी कैलकुलेशन दो। रुक जाओ तुम, मेरे पास किताब है उसके लिए तुम्हारे लिए। तो क्वेश्चन दिया भाई। So r/4 of the earth's surface. मतलब सेकेंड चाहिए इसमें। क्यों यार, अगर आपके पास एक बॉडी है जो आपने थ्रो करी अर्थ के सरफेस से, राइट, यहाँ से, यहाँ पे जब सरफेस पे होता है वो बॉडी, तो इट हैज द पोटेंशियल एनर्जी माइनस gmm/r. Then you give it a kinetic energy. The kinetic energy does work on it, यस and it reaches at a height where the new kinetic energy is this much. Kinetic energy is not there because it came to standstill. ये बोला है। ठीक है। कहने का मतलब है हाफ mv², अगर इफ यू ट्रीट अर्थ सरफेस टू बी एट जीरो एंड से mg जीरो हो जाएगा ना, mgh, h is above the earth surface. हाँ This is equal to mgh. Whatever ठीक है। kinetic energy you gave got converted into potential energy. ठीक। You have to calculate v. You don't need to know the mass, दोनों तरफ से कट जाएगा. Under root of 2g gh 2 into g into r/4. r/4, right? It would be under root g r/2. इनका 2/5 क्या आ रहा है? ये गलत होगा। हमारे स्कूल का असाइनमेंट है यार, गलत क्यों होगा? नहीं क्वेश्चन आंसर गलत देते हैं ना ये। नॉट नेसेसरी। गलत दे देंगे भाई। द रेडियस इज तो काफी कौन पढ़ सा दिया है ना यूनिवर्सिटी से गलत। निकाला है? बोल दिया पेंडोरा। 2/5 जनरली 2/5 आता है जब स्फीयर होता है और डेंसिटी यूज होती है, मास। 2/5 मेरे ख्याल से मैंने जो कॉन्सेप्ट लगाया है कि एनर्जी कंजर्वेशन का, जैसे बॉडी ऊपर फेंकते हैं तो उसकी कितनी हाइट जाती है, यही तो होती है। अगर हम काइनेमेटिक्स करते हैं इनसे, व्हाट इज द वेलोसिटी, तो ये तो लिखते वैसे हैं v² - u² इज इक्वल टू 2as। वही हम्म लगाया मैंने।
इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, हाफ mv स्क्वायर, got converted into this. Okay, then do this. Wait, क्योंकि इसने सरफेस है ना, then use this equation. Use this. क्योंकि h हो सकता है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो नहीं मानता ये अर्थ पे। मैंने तो जीरो मान ली थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और उसके ऊपर जो है जीरो के ऊपर मे बी ही अज्यूम्स कि देयर इज अ ग्रेविट, इसका जीरो ही है, माइनस जी एम एम बाय आर। ये पुट करके देख लो, एंड पुट आर इज इक्वल टू, हेयर पुट आर इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू आर बाय 4। देखते हैं ऐसे आता है। अच्छा, वहां से दोनों तरफ से कट जाएगा। एम तो चाहिए ही नहीं ना। बट अभी माइनस डीएम है। ठीक है, आर प्लस आर बाय 4। चलो 5 तो आया। 5 अबाव 4 नहीं, आर भी लिखो नीचे। हाँ, 5/4 जी एम, ठीक लिखा। 4/5, 4/5 और नीचे आर, 5r। एलसीएम नहीं लेने आता, 5r। h was equal to r by 4। h is equal to r by 4। r नहीं लिखा अभी तक। मीटिंग आपने क्या बंद कर दी थी क्या? नहीं, चल रही है। अच्छा, वही तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था एकदम से। हाँ, ये लो। ठीक है, उस तरफ ले जाओ जी एम बाय आर को। हम्म, 5r, एलसीएम में 5r है। नहीं कुछ नहीं, वो लिख प्रॉब्लम रहा हूँ तो मैं। जरूर है भाई, नहीं नहीं, लिख रहा था मैं वो भी। कुछ प्रॉब्लम तो है। नहीं नहीं, लिख रहा हूँ मैं भी इसको। नहीं, कोई प्रॉब्लम है यार। अरे, कोई भी बता सकता है, कोई प्रॉब्लम तो है। इंटरेस्ट की कमी है या अटेंशन स्पैन कम है, कुछ तो प्रॉब्लम है। इंटेलिजेंस इशू नहीं है ये। आगे सब इंटेलिजेंस इशू भी हो सकता नहीं है इंटेलिजेंस इशू। है। फोर बाय। बाय फाइव हाँ, एंड देन हाउ मच इज जी एम बाय आर? जी एम बाय आर, हम्म, ये रेस टू पावर 1/2 है मेरे ख्याल से, उन्होंने हाँ, वन रेज टू बाय टू पावर लिखा है। हुआ।
तो सही है फिर इस हिसाब से तो हाँ, ये गलती है। इनका आर आ रहा है ना एक्स्ट्रा एक, ये हमारा भी और तो आ आर रहा ही कहाँ रहा रहा है। है? अच्छा नहीं, हमारा जी इज इक्वल टू, हाँ हम जी डाल देते हैं ना, जी की वैल्यू जी एम हम्म। में। और व्हाट इज जी इक्वल टू? जी एम बाय आर स्क्वायर। हम्म। तो जी आर इज इक्वल टू जी एम बाय आर। तो हाँ ये तो बन गया कितना? जी आर। ठीक है। आ गया? ऐसे भी ठीक है। नहीं, उन्होंने प्रूव करने को जो दिया वही लाना पड़ेगा, ऐसे ठीक नहीं है। अच्छा ये ठीक नहीं है। प्रूव ओके। दैट में तो एक्सप्रेशन कंफर्म्ड है कि यही लाना है। आ गया, ठीक है। So tomorrow what we will do is we will then start doing orbital velocity, हम्म। and then we will do total energy, geostationary satellite, polar satellites. ठीक है हमारा सर, कल वो का मुझे दे पेपर देना ये एक रहा। हाँ जी। कैलकुलेशन का। हाँ, कैलकुलेशन और एक वेक्टर्स का क्वेश्चन। इसका वेक्टर का कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन देना, मैं तुम्हें एक शीट भेज रहा हूँ उसके लिए यार। एक वेक्टर्स का भी। हाँ ठीक है, वेक्टर का, वेक्टर प्रैक्टिस करी है तुमने? हाँ जी। ठीक है। मैंने पता नहीं कितने वीडियो बनाए हैं वेक्टर के ऊपर, 100 150। अरे देख लूंगा मैं। 100 100 से नहीं, ज्यादा होंगे। नहीं 2000 भी हो सकते हैं। और 2000 नहीं। 2000 ठीक तो है, I'm भी sending you a चलेगा। sheet of calculation यार, करो उसको। ठीक है। ठीक है। तो कल का कल तुम छुट्टी पे हो? कल तो सैटरडे है। तो छुट्टी है नहीं है? है क्यों नहीं होगा। ठीक है, आई विल ट्राई टू पिंग यू अर्ली, इफ यू कैन हैव एन अर्ली क्लास। आई एम लीविंग दिस प्लेस एट 2, 2 बजे टू जा रहा हूँ मैं। तो 11 PM, 11 AM। हाँ, 11:45 में मेरी पहली क्लास खत्म होगी, सो मे बी एट 12:15 12:30। 9 बजे। उठूंगा नहीं यार मैं, मुझे पता अच्छा। है, मेड आती है हमारी, ब्रेकफास्ट वगैरह बनता है। ठीक। सी यू टुमारो देन।